मैम आई थिंक आई शुड स्टार्ट एट 8:35 यस है मैम, ना? अभी तो मतलब यस बच्चे अभी आ रहे हैं। हाँ पुलकित बेटा अपना वीडियो ऑन करिए। अवंती गोयल बेटा, चेहरा दिखाओ अपना। सृष्टि गर्ग, आपका हाथ नहीं देखना है। वेरी गुड। एंजल, आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। राशि गुप्ता बेटा कैमरा ऑन करिए। यश दिव्यांशु खंडेलवाल, राठौर। राठौर, अपना अपना कैमरा ऑन करिए वरना अभी मैं निकाल दूंगी। एवरी टाइम आई हैव टू टेल यू। ओके आई थिंक आई शुड कंटिन्यू पूर्वी मैम, ओके मैम। है ना? So यस children, in the last class we were discussing the question answers and I told you that we will discuss the reference to context today. So you have to give the answers for that. First reference to context is, you are a regular Shakespeare. Who said these words and to whom? You have to raise your hands for giving the answer to this question. You can raise your hands, children. Ma'am Devyani is raising her hand. You please unmute her. मैम Yes, आई not that said to Margaret. Beta, no. Beth is correct, but you can read it on page number 30. You can get this point on page number 30 and you can see you are a regular Shakespeare. So to whom she is saying? Beth is correct. Ma'am, you may give the chance to anyone else, Krishna Sharma or Harshit ओके मैम। Agarwal. Beth is correct. हर्षित, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ, मैम जो सेड सॉरी बैथ सेड टू जो yes, Beth said these words to Joe. This is the correct answer. Okay, second question of this extract is, what does regular Shakespeare means? Regular Shakespeare का यहाँ पर meaning क्या है? Who will tell us? What does regular Shakespeare mean? Regular Shakespeare का meaning क्या है? Anyone दिव्यानी, else other than? हाँ. Ma'am, regular Shakespeare means that she was good at writing plays. हाँ. That's why Okay. she said her regular Shakespeare. अच्छा, Darius wants to give the answer, ma'am. So you should ओके मैम। unmute him, है ना? Earlier he was raising his hand. वेट अ मिनट मैम, ये रहा हाँ. डेरियस, और अपना वीडियो भी ऑन करिए बेटा। Yes, Darius, what is the answer, beta? Darius, unmute डेरियस, yourself and give the answer. Unmute yourself. Darius, unmute yourself. Okay, I am going to tell the answer. Devyani has answered correctly, but the appropriate answer is regular Shakespeare. Shakespeare, we know he is a famous playwright, है ना? So here regular Shakespeare means that Joe has the similar characteristics of Shakespeare, a famous playwright.
मतलब उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत अच्छे प्ले लिखते हैं शेक्सपियर, तो वही चीज उसमें भी ये क्वालिटी है, सेम क्वालिटी जो हैज, कि वो भी एक बहुत ही अच्छी प्ले राइट है. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द स्पीकर इज पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू द लिसनर? जो स्पीकर है वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है लिसनर को. एनीवन एल्स अदर देन दिव्यानी? एनीवन एल्स? रेज योर हैंड फॉर गिविंग द आंसर. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो स्पीकर है, मतलब जो बेथ है, वो कॉम्प्लीमेंट दे रही है जो को, उसकी तारीफ कर रही है. यू कैन टेल द आंसर. एनीवन एल्स? यस मैम. श्रेयांश. श्रेयांश. हाँ श्रेयांश. Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग बेटा. Ma'am, the answer is yes. The better compliment to the Joe for his nice play writing. You have to just answer in yes or no and write the Yes. same line from the answer. Nothing else you have to add over here. So answer is yes. I Yes. think that the speaker is paying a compliment to the listener. Okay. Okay. The next question is, children. Next line you can see, everybody sniffed when they came to that part. चलिए, where was everybody? सब लोग कहाँ थे तब? Can anyone answer? सब लोग कहाँ थे? Raise your hands. Raise your hands. Anyone else other than Divyani? Ojas, your camera is off. You should on your camera. Yes, children, raise your hands. Where was everybody? जब वो लोग ये लाइन कहाँ पर आई है, पहले ये देखिए बुक में. Where is this line? Find out करिए, उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या होगा. Where was everybody? सब लोग कहाँ थे? Okay, मैम, unmute Devyani. No one else? Okay. Devyani, unmute Ma'am, yourself. yes, ma'am. हाँ. They all were sitting near the fire with their mother. Okay, right answer. They were sitting around their mother. Everybody was sitting around the mother. Okay. Now, second question is, what were they doing? वो लोग तब क्या कर रहे थे? What were they doing? क्या कर रहे थे सब लोग मिलके? Anyone else? Okay, Harshit will answer. Ma'am, unmute Harshit. Ma'am, हाँ. they were reading a letter of their father. वेरी गुड. सब लोग क्या कर रहे थे? जो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, रीडिंग. क्या मम्मी तो सुना रही थी ना लेटर, तो दे वर लिसनिंग टू देयर फादर्स लेटर केयरफुली. ओके हर्षित, they were listening to their father's letter carefully. Okay. Now, which part is being spoken of? अब ये किस पार्ट की बात हो रही है? Can anyone tell? ओजस बेटा अपना वीडियो ऑन करिए वरना मैं निकाल रही हूँ अब. अब इसमें क्या हुआ था वो हमें बताना है. किस पार्ट के बारे में बात हो रही है कि जब वो लेटर पढ़ रहे थे तो क्या हुआ था? Can anyone answer? Raise your hand, children. Raise your hands for giving the answer. Okay, I am going to tell the answer. जब वो लेटर पढ़ रहे थे तो क्या हुआ था? They became emotional. सब लोग जो थे लेटर पढ़कर, लेटर सुनकर क्या हो गए थे? इमोशनल. तो हम लोग लिखेंगे the part when they all became emotional is being spoken of. यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? जब वो लोग उस पार्ट के बारे में, जब लोग सब अपना फादर का लेटर सुनकर बहुत इमोशनल हो गए थे. Okay, one exercise is there in this chapter. You can come to page number 37. 37 पर देखिएगा, एक्सरसाइज गिवन है, एक क्रॉसवर्ड पजल है. तो you can raise your hands if you know the answer. ठीक है? Another name for a friend. Ma'am, you can unmute Darius for the answer. Or Jayesh Bhatia. Good morning, ma'am. Good morning. Beta, what Ma'am, is the another name? हाँ, another Ma'am, name companion. for a companion.
Okay, it's the right answer. So the spelling is, you can speak the spelling also, Darius. Wait a minute. Okay. COMPANION. Yes, it is the correct answer. So rather than filling in the puzzles, you can write the answer in front. Okay, children? Next is your mother's sister's daughter. Your mother's sister's daughter. जो आपकी मम्मी है, उनकी बहन की बेटी, आपकी क्या लगी? चलिए, माही will tell us. Mahi, you can tell the answer. Cousin. You can tell the spelling also, beta. COUSIN. Yes, COUSIN. Okay, next is, these are your relatives that go way back into the past. These are your relatives. So, Devyani can answer. Devyani, Yes, beta, what is the answer? Unmute yourself. Unmute yourself and tell the answer, Devyani. Ma'am, answer is ancestors. Yes, repeat the spelling also. Tell the spelling also. Yes, ma'am. ANCESTOR. TORS is already given over there, है ना? Ancestors. Okay. Ancestors. S लगा लीजिएगा in front. Okay. Next question is, someone who is on the same side as you in a game. Someone. Mahi can answer. Mahi, What is the answer, beta? Mahi, Okay, ma'am, unmute give- yourself, beta. Yes, Ma'am, beta, what is the teammate? What is the spelling? TEAMMATE. Yes, TEAMMATE. Double M would be there. Okay. Next one is somebody who you play a game against. Somebody who you play a game against. Okay, ma'am, give the chance to Gungun Bansal now. Gungun Gungun. Bansal. Ma'am, good morning. Good morning, beta. What is Ma'am, the answer? opponent. Opponent. Tell the spelling also, Gungun. OPPONENT. Yes, opponent. It is the correct answer. Next question is, someone who you work with. Someone who you work with. Okay, ma'am, give the chance to Shreyans. Shreyansh, You can beta, unmute unmute your... yourself. मैम ये वाला नहीं आ पा रहा मैम. Okay. Darius can answer. Darius, Ma'am, colleague. COLLEAGUE. Yes, it is the correct answer. Okay, somebody from the same country as you. So, Gungun, you can tell. Someone from the same country as you. Gungun, Yes. इसका Yes. आंसर है compatriot. COMPATRIOT. That is compatriot. Okay? Compatriot. COMPATRIOT. Okay, it is the right answer. Then is someone you are married to. Someone you are married to. Utkarsh Mathur can answer. Utkarsh, Yes, Ma'am, spouse. SPOUSE. yes, spouse is the correct answer. Your mother's brother's wife. Your mother's brother's wife. Ninth one. What is the answer for this? Gaurav can answer. Okay, Krishna Yadurvanshi. Yes, beta. What is the answer? Aunt. AUNT. Yes, aunt is the correct answer. So, children,
This exercise is there. You can complete your word meanings and question answers from the e-classroom. Now I will begin with English grammar. You can take out your books now. We'll continue with parts of speech today in English language. You can start that. Take out page number 147 in that. Page number 147, the sentence. We'll revise the chapter, the sentence. So I'm going to start with the explanation, children. देखिए, group of words make a complete sense and they form a sentence also. जो sentence होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं मिलके एक सेंटेंस को बनाते हैं, और जो सेंटेंस होता है वो हमारा कंप्लीट सेंस फॉर्म करता है. या तो सेंटेंस जो होता है वो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है, या फिर क्वेश्चन को एक्सप्रेस करता है, या किसी कमांड को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो we will read in this chapter first of all the sentence, subject, predicate, and then we'll come to the parts of speech जो noun, pronoun वगैरह होते हैं. So अब sentence में देखिएगा, the sentence always begins with a capital letter. जो sentence होता है वो हमेशा capital letter से start होता है, और end किससे होता है, या तो full stop से, या question mark से, या exclamation mark से. तो सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें प्रेडिकेट भी होता है. तो सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, और वो स्टार्टिंग उसकी भी कैपिटल लेटर से होती है और एंड होता है फुल स्टॉप से. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल. इसमें सब्जेक्ट है, आई है, एम गोइंग इज द वर्ब, और टू जो स्कूल है वो क्या है, आई एम गोइंग टू, आई जो होता है वो सब्जेक्ट है, जो बाकी सब चीज रिमेनिंग रह जाती है वो प्रेडिकेट होता है. और ये सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्टेटमेंट्स कहलाते हैं. अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एज द इंटेरोगेटिव सजेस्ट अस कि इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें एंड में इसकी जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क्स से होती है. और क्वेश्चन वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि हम लोग क्वेश्चन, व्हाई आर यू लेट, वेयर आर यू गोइंग, और इसके बाद में हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क्स. तो ये हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. पहला मैंने बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसकी एंडिंग किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से. अब आता है हमारा थर्ड वन, इंपैरेटिव सेंटेंसेस. इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कमांड्स आते हैं, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, वो सब इंपैरेटिव सेंटेंसेस में होता है. जैसे यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपको किसी से पानी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इट मींस यू आर रिक्वेस्टिंग समवन, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो हमारा क्या हुआ, इंपैरेटिव सेंटेंस. अब जैसे टीचर ने बोला लीव द क्लास, तो इट्स एन ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस. ठीक है. अब जैसे आर्मी में लोग होते हैं तो कहा जाता है मार्च फॉरवर्ड, तो ये जो होते हैं इस टाइप के जो होते हैं कमांड्स, वो कमांड्स होते हैं, और वो आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस में. और इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उनके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ज्यादातर यू होता है. अभी उसके एग्जांपल्स मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ दूंगी. इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो सरप्राइज का हो, चाहे वो गुस्से का हो. जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, एंगर, जो ये वाले जो फीलिंग्स होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं. जैसे कि हम कहते हैं ना,
हाउ ब्यूटीफुल द ड्रेस इज, बहुत, ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो एकदम ही सरप्राइज रहेगा किसी चीज को देखकर, तो वो हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हमने कोई सीन देखा बहुत ब्यूटीफुल सा, तो हम उसको बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो उसमें हम लोग लगाते हैं, उसकी एंडिंग जो होती है एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है, और ये हमें एकदम सरप्राइज कर देते हैं। अब जैसे कहते हैं हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे के बाद जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, वी वन द मैच। अब इसमें क्या है कि अब वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये जो सेंटेंस माना जाएगा वो एक्सक्लेमेटरी में आएगा। और अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कहते हैं अलास ही इज नो मोर, तो मतलब इट इज एक्सप्रेसिंग द सॉरो, दुख व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इंटेरोगेटिव ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। अब पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में बात की जाती है, जैसे दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी कैन से समथिंग। अब जैसे हम जिस चीज के बारे में बात करें, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, किसी भी चीज के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे, अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, रवि बॉट अ बुक। अब ये बताइए, अब यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रवि के बारे में, तो यहाँ पर जो रवि है वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम बोलेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। अब द बॉय बाथ इन द गंगा, तो बॉय जो है वो कहाँ पर नहाया, गंगा रिवर में, तो अब किसके बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में, तो द सब्जेक्ट इज द बॉय, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें वर्ब होता है एक तो, और वो बताता है कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, वो एक तरीके से सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस को। जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट रह जाता है, रेस्ट पार्ट एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, इज नोन एज द प्रेडिकेट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, रवि बॉट अ बुक, रवि तो यहाँ पर सब्जेक्ट था कि रवि के बारे में बात की जा रही है, लेकिन आगे रवि के बारे में क्या बात की जा रही है, वो हमारा बाकी सब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा आ जाएगा प्रेडिकेट में। बॉट अ बुक जो होगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, द बॉय बाथ इन गंगा, इन द रिवर गंगा। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, द बॉय, तो वो तो हो गया सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा बाथ इन द रिवर गंगा, तो वो हमारा जो है रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द सेंटेंस एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यू कैन आस्क। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको और बता देती हूँ, जैसे कि हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लिखा होता है डोंट प्लक फ्लावर्स। अब उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, उसमें हिडन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि, तो वो किसको कह रहे हैं, डोंट प्लक फ्लावर्स। जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, बाहर लगे रहते हैं कि फूल तोड़ना मना है, तो किसको कह रहे हैं वो मतलब उसमें जो सब्जेक्ट हिडन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड यू। क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्ड यू। डोंट प्लक द फ्लावर्स, इसमें सब्जेक्ट हमारा जो आएगा वो आएगा यू, क्योंकि ये होता है हिडन सब्जेक्ट। Is it clear? If you have any queries regarding this part, you can ask me, otherwise I'll continue further. धीरज, switch on your camera बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, आप पूछ सकते हो। यू हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, सो यू कैन आस्क। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप बता दीजिए। कैमरा ऑन करिए। अगर आपको कुछ पूछना है द सेंटेंस में, यू कैन आस्क। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कुछ पूछना है तो बता दीजिए। आई विल टेल यू अगेन। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क, क्योंकि आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद द नाउन्स।
Raise your hand if anyone has problem, beta. No one has problem in the sentence and the subject predicate. So we should continue further. अब जो parts of speech है, वो 8 parts of speech है उसमें हम पढ़ेंगे noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunctions and interjections. तो इसमें अब हम लोग first हमारा जो description है, that is of a noun. अब नाउन क्या होता है? नाउन होता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं संज्ञा. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन होता है किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, या एनिमल का, या थिंग का. अब जैसे एग्जाम्पल्स गिवन है, शाम, आगरा, काऊ, पेन, सिटी, डॉक्टर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नाउन्स के. ठीक है, तो अब नाउन्स जो है, Balpreet ma'am, Avanti is asking a question. ओके ओके ओके, ठीक है, Unmute yourself. बताइए Ma'am? बेटा व्हाट इज. हाँ मैम एक बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दीजिए. ओके बेटा, डेफिनेटली. देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे अवंती स्टडिंग विद हर बुक. एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अवंती स्टडिंग विद हर बुक. तो किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं अवंती के बारे में बात कर रही हूँ. तो जिस पर्सन के बारे में या जिस थिंग के बारे में बात की जाए, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट, जो रिमेनिंग का पार्ट होता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट. वो भी चीज सब्जेक्ट के बारे में कही गई होती है. मैम, पूर्वी मैम, Yes ma'am. please unmute Avanti because lot of disturbance is coming. I am explaining. Okay ma'am. ओके, चलिए मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ सब्जेक्ट के बारे में कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी कैन से समथिंग. सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं. वो पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है. ठीक है, आई टोल्ड दैट अवंती इज रीडिंग विद अ बुक. तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अवंती. तो अवंती इज द सब्जेक्ट ओवर हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द प्रेडिकेट. जैसे मैंने बोला अवंती इज रीडिंग अ बुक, तो इज रीडिंग अ बुक जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया और अवंती जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो प्रेडिकेट को हम कह सकते हैं कि जो पार्ट except the subject जो बचता है, except the subject, the rest of the part of the sentence is called the predicate. सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट बचता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. या ये कह सकते हैं जो भी चीज सब्जेक्ट के बारे में बोली गई है वो प्रेडिकेट कहलाता है. और सेंटेंस इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलकर जो है सेंटेंस बनता है. तो चिल्ड्रन, अवंती को मैम एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा. Okay ma'am. Avanti. Yes ma'am. बेटा, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes ma'am. Thank you ma'am. ओके, नाउ वील बिगिन विद द नाउन्स. अब नाउन्स पढ़ेंगे हम लोग. आई टोल्ड यू दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब नाउन्स जो हैं दे आर प्रॉपर नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, प्रॉपर 4 काइंड्स के होते हैं. इसमें 4 काइंड्स दे रखे हैं, होते वो 5 काइंड्स के हैं क्योंकि मटेरियल नाउन इज आल्सो इंक्लूडेड ओवर देयर. तो देखिएगा, फर्स्ट कम्स प्रॉपर नाउन. ऐसे नाम जो प्रॉपर चीजों के हैं, जैसे अनुज, जिनके नाम होते हैं, जिन चीजों के नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स. जैसे कि अनुज बॉय है, अनुज उसका नाम है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पर नाउन हुआ. प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो नेम गिवन टू द पर्सन्स वी कैन से, जो नाम दिए जाते हैं उनको बोला जाता है प्रॉपर. जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, द ताजमहल,
तो ये जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। गंगा है, ये रिवर है, लेकिन गंगा इज द नेम गिवन टू द रिवर। तो जो नाम दिए होते हैं वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। नाउ विल रीड कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन कैसे होते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया बिल्डिंग, बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, तो वो वहां पर क्या है हमारी उसको नाम तो हमें नहीं पता कौन सी बिल्डिंग है। अगर हमने बोला द रेड फोर्ट इज अ फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, अब मॉन्यूमेंट हमें यहाँ पे जो है वो कॉमन नाउन है, उसको नेम, और जो यहाँ पर हमारा वो है रेड फोर्ट या ताजमहल, वो प्रॉपर नाउन्स है। जिनको नेम गिवन होते हैं वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन्स, और जिनके नेम्स नहीं होते वो हमारे होते हैं कॉमन नाउन्स। सो आई थिंक देयर इज वन क्वेरी, you can ask, someone is asking for the query, you can tell me what is your query children. बताइए बेटा क्या। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम जैसे बिल्डिंग्स होती होगी, आपने एग्जांपल दिया था बिल्डिंग्स का, तो मैम वो तो न्यूट्रल में आएंगी ना, क्योंकि वो लाइफलेस है। नहीं, वो न्यूटर जेंडर में तो आएंगी। अगर न्यूटर नहीं गिवन है तो फिर हम वो कॉमन में लेंगे उसे। ओके। अगर न्यूटर, अब जैसे इस बुक में तो हमें गिवन ही नहीं है। अब देखिए नाउन तो हम पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन भी है, बताती हूँ आपको। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, पहले तो वो नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जॉन है, दिल्ली है, चेन्नई है, ठीक है। और जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो जनरल नेम्स होते हैं प्लेसेस के, पर्सन्स के, ऑब्जेक्ट्स के। अब जैसे एग्जाम्पल है उसके लिए, बॉयज हो गए, पार्क हो गया, चेयर्स हो गई, तो वो इस चीज में आ जाएगी। जिसका नाम नहीं है वो इस चीज में आ जाएगी। बॉयज, गर्ल्स, अब वो कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी कोई भी हो सकती है और गर्ल्स बॉयज भी कोई भी हो सकते हैं, तो नाम गिवन नहीं है उसमें। तो हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कॉमन नाउन, ये होता है हमारा कॉमन नाउन। उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन का मीनिंग ही ये स्पेसिफाई कर देता है कि इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। वो किसका नाम है? एक ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। जैसे एनिमल्स का कलेक्शन है, उसको लेकर भी हम उसमें कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो जो आर्मी है सोल्जर्स की, इट इज अ कलेक्टिव नाउन ओवर हियर। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा हमारा आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हमारा है वो हमारा किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं स्कूल ऑफ फिश। वो अभी एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन नहीं है कलेक्टिव नाउन्स के, जैसे ब्रूड ऑफ चिक्स, गैंग ऑफ थीव्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये सब आते हैं। अब आगे हम देखेंगे, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो क्वालिटी बताता है, जो आइडियाज बताता है और जो इमोशंस बताता है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी हो गई, ब्यूटी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, वो इसमें आएगा। उसके बाद हमारा आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जैसे द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, क्या सब्सटेंस यूज हुआ है, या क्या मटेरियल यूज हुआ है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं दैट इज द मटेरियल नाउन। जैसे द चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक इज द मटेरियल ओवर हियर। किस चीज को हम यूज करें? प्लास्टिक को यूज करें। तो द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो क्या चीज यूज हो रही है? हमारी लकड़ी यूज हो रही है, वुड, तो वो हम यूज करेंगे उसके लिए। और बेटा एक मिनट, मैम जिसने क्वेश्चन पूछा था जरा उसको अनम्यूट कर दीजिए। हु द चाइल्ड वाज, आई वांट टू आस्क। किसने हैंड रेज किया था इससे पहले? बेटा किसी ने हैंड रेज किया था, आई वांट टू करेक्ट यू। हाँ, कृष्णा यदुवंशी। देखिए बेटा, वो क्या था जो मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, देवर टाइप्स ऑफ नाउन्स।
वो नाउन्स के टाइप पे, और जो न्यूटर होता है वो एक जेंडर है. इट्स नॉट कि वो आप उसमें ले लेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में वो चीज नहीं आएगी. वो जेंडर्स हैं हमारे, मेस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, वो जेंडर्स हैं. दैट इज नॉट कि काइंड ऑफ नाउन में नहीं आएगा, वो टाइप्स ऑफ जेंडर्स में आएगा वो. इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, आगे मैं ma'am. बताती हूँ. अब जो नाउन्स होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में. तो जो काउंटेबल नाउन्स हमारे होते हैं जिनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, पेंसिल हो गए, पेन्स हो गए, तो हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, हम काउंट कर सकते हैं उन्हें. तो ये चीजें आती हैं हमारी काउंटेबल नाउन्स में. और काउंटेबल नाउन्स प्लूरल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म्स में भी हो सकते हैं. ठीक है. और जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ज्यादातर वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड. तो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे मिल्क होता है, मिल्क हम अनकाउंटेबल है. हमारे हेयर कितने हैं, हेड पर हेयर कितने हैं वो भी हम काउंट नहीं कर सकते. राइस है वो काउंट नहीं कर सकते. शुगर है, ये सब चीज हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में. बेटा इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी. अगर किसी को भी इतने पार्ट में नाउन्स के में प्रॉब्लम है, अगर टाइप्स में, काइंड्स ऑफ नाउन्स में, या काउंटेबल अनकाउंटेबल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क एनीवन. बेटा 1 मिनट रह गए हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है अगर पूछ आपको सकते हैं. पूछना है कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब नाउन से रिलेटेड, जितना मैंने अभी पढ़ा दिया, तो यू कैन आस्क. मैम अक्षिता इज आस्किंग समथिंग. ओके मैम. अक्षिता. मैम यस. मैम ये नाउन्स, मैम प्रॉपर नाउन्स, मैम ये सारे नाउन्स मैम के पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आएंगे? यस बेटा, जो नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनके सब पार्ट्स भी आएंगे. और संग में ये खुद तो है ही मेन, और सब कुछ इसका जो हमने पहले पढ़ रखा है नाउन्स प्रोनाउंस के बारे में, आपने 4th 5th में भी पढ़ा होगा, 2nd 3rd से ही पढ़ लेते हैं हम लोग नाउन्स. तो वो पूरा Yes. जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है. ओके Okay, ma'am. Okay, Okay. thank you. ओके. गौरव वांट्स टू आस्क समथिंग. मैम गौरव कुछ पूछना चाहता है. वेट अ मिनट मैम. या गौरव. गौरव बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. मैम वो गलती से प्रेजेंट हो गया था. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके मैम, we'll continue tomorrow children. Okay. Okay, I'll end the meeting now then.